Sure, sir. What is the question, Padmanabhaji? Sir, from my company, I was working in USA and I returned in 2022. Is there a chance for me to go back again? Since when were you there in the USA? From 2016 November to 2022 March. 2016 November to 2022 March. Okay. The 12th का sublord is Mars in the star of Mars, sub of Rahu, Rahu in the sign of Moon. Mars is ruling. Now if we see the rulership, Mars Aries is falling on the 8th house. Scorpio is on the 3rd house. Okay, 12th cuspal sublord Mars ruling significator of 3, 9, 12. Okay, fine. Now Saturn here in the star of Moon, sub of Saturn. After that, Mercury will come in Mars star. Okay, after Saturn Antara, you can go, sir. यहाँ रहने का जो निर्णय दिए थे ना, बहुत बढ़िया आपने निर्णय दिया। Saturn Antara, sir. Yeah, Saturn Antara is already over. Mercury is running. Mercury will be there till March of 2026. The Pratyantara which you are going through as of now is of Jupiter is from 26 July to 14th November. Okay, after that Saturn will come. There, I think you are in talks with people like some things might be going on. नरेश शर्मा जी प्रणाम, भीष्म पितामह जी। म्यूट हो आप, म्यूट हो। म्यूट हो सर। हो गया। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ गई आपकी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो आप बड़े यंग स्मार्ट दिख रहे हो, क्या बात है? वो तो मैं हूँ। So Padmanabha, I think you are in talks already. It seems that I believe that soon you will be going, and it should happen in the period of April, in the month of April. Anytime after April, you can go, sir. Okay, sir. Okay. It is my request that those जिनके question पूरे हो जा रहे हैं, please leave the room so that it looks less congested. So Padmanabha, I have given your answer. Anytime after April, you can go. Okay, sir. Thank you so much, sir. Yeah, thank you. Thank you for joining. Other question, please. May I ask? Yeah, please, please. Sir, my date of birth is 6th August 1997. मैं वो नहीं आ रहा, बात करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसलिए। Who is asking? Yeah, Manish here. Sir. Manish. Yeah, Manish ji, please tell your date of birth. 6th August 1973. 6th August 1973. 6:35 a.m. 6:35 a.m. Muzaffarpur, Bihar. Okay. What is the question, Manish ji? एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ मैं। कुछ लोगों को पैसा भी दिया कुछ काम के लिए, तो दे आर नॉट रिटर्निंग। तो फिनेंशियल स्थिति बहुत ही खराब है, तो उसी से रिलेटेड जानना था कि हाउ द थिंग्स विल मूव ऑन। And what do you do? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। Before I what was you were working doing? with MNC company since last 6 years. I am at home. At home. Okay. बीच में कोई दिन ज्वाइन किया था, 1-2 साल चीजें ठीक चली थी 2020 एंड से 2021 तक। उसके बाद से फिर पूरा टर्मोइल हो गया कोविड के टाइम से। नहीं, कोविड के बाद 2020 से 2021 तक अच्छा रहा, एक साल का पीरियड। आई लॉस्ट माय जॉब इन 2018। उसके बाद एक साल का पीरियड अच्छा रहा, फिर जो कमाया था वो लोग लेके भाग गए। जानो? Okay. जी। So now your question is, you are in financial crisis because you have given money to people. हाँ, और कैसे, मतलब how the things will pan out. Okay. So are you planning to do any business, right? What are your plans exactly?
सर एक्चुअली अभी मैं बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। जी। ओके कहीं कुछ लोगों ने बोला कि उनका काम हो गया तो वो मेरे को एंगेज करेंगे, बट समहाउ दैट डजंट मैच्योर्ड, तो चीजें अभी भी स्टक अप है। आई एम वेटिंग फॉर समथिंग। यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब और योर ओन सेल्फ बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। नॉट एग्जैक्टली जॉब, कंसल्टेशन टाइप ऑफ थिंग, कि मतलब कुछ एंगेजमेंट हो, क्योंकि एक बार आप लीग से हट जाते हैं तो फिर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट राइट 2018 I have gone through major problems, like I lost my father, sister, everything, finance as well. ओके So So Ketu Dasha is there till 2031. Ketu Dasha and the Antara which you are going through right now is of Moon. Moon is placed in the star of Jupiter in the sixth house. You should look for a job presently. I think you will be, Jupiter is there, Ketu, Venus, Moon. Moon is there till July. I think you should look for a job as of now. Other things can come later. And you will be getting a job. I don't see you not getting a job at all. Because केतु कब तक है इसका? केतु केतु कब तक है इनका? केतु केतु है 2031 तक। ओहो, लंबा है, अभी शुरू हुआ है। जी हाँ सर, मार्च में शुरू हुआ है। सो मनीष जी, सुवेंदु जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ऑलरेडी डे इज ओवर, सो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द कमिंग नाइट। सो एंजॉय योर बर्थडे टुडे। थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस। कोशिश करूंगा, अगर कोई भी प्रश्न हो तो कोशिश करूंगा एक आध अगर अटेंड कर सकूं। जरूर जरूर। सो मनीष जी, अभी आपको जॉब देखने के लिए फोकस करना चाहिए। जो आपका टाइम चल रहा है अभी टिल जुलाई 2026, दिस इज गोइंग टू गिव यू ए वर्किंग स्टेटस। जी ये मून शुरू होगा आपका 27 दिसंबर से। सो आई सी यू इन ए वर्किंग स्टेटस इन द मंथ्स ऑफ जनवरी फरवरी। अबाउट फाइनेंशियल्स एंड ऑल, इट विल इम्प्रूव, इट विल इम्प्रूव इन 2026 जो डेफिनेटली। गया है वो वापस उम्मीद कर सकता हूँ क्या? क्या जो चीज? लोगों ने जो लोग लेके भागे हुए हैं, वो रिटर्न होने की कुछ उम्मीद लग रही है क्या? मून इज रूलिंग 12th हाउस। पैसा वापस आएगा 2611 में। 2611 मून इज सिग्निफाइंग सिक्स्थ हाउस। सो यस, उम्मीद करनी चाहिए आपको। कुछ ना कुछ लोग पैसा जरूर वापस देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा डूब जाएगा। थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट फॉर योर रिप्लाई सर। या थैंक राइट यू। राइट, थैंक यू मनीष जी। यस प्रकाश, प्लीज यू आस्क। सर मेरा क्वेश्चन बबीता जी, टेक दिस क्वेश्चन। बोलिए मैम। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। जी मेरा ये था कि मेरी बेटी के लिए पूछना था कि वो क्लास क्या? 10th में है। वो बॉर्न है 2 अप्रैल 2010 की। 2 अप्रैल 2010। ठीक है। 3:05 पे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। बिलास होगा या विलास होगा? बिलासपुर है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, रायपुर। ओके मैम। दो अप्रैल बताया ना आपने? जी 2 अप्रैल 2010 जी। दोपहर के 2 बज के। हेलो। हाँ हाँ मैम, बोलिए। जी 2 अप्रैल 2010 3:05 दोपहर में बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर गूगल पे कोऑर्डिनेट देखिएगा बबीता जी, बिकॉज 3-4 बिलासपुर है। एक उत्तराखंड में है, एक एमपी में है, हाँ, वो NCG में। गूगल पे देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में है सर, ये बिलासपुर। हाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर। जी अर्लियर इट वाज वन ओनली ना, एमपी एंड सीजी वर वन। जी जी। कोऑर्डिनेट 82.14 और 22.07 आ रहा है। 82 पॉइंट वाला है हाँ जी, और 22.9, ठीक है। हाँ जी, 22.5। 07। ओके सर, 82 इस 9 है, 22.5 ये लेना पड़ेगा। या ठीक है मैम। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन ये कि ये 10th में है और ये क्या कैरियर इसके लिए सुटेबल होगा? ये क्या Career? जी क्या पाथ फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या रहनी चाहिए जी ये जी 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 जी।
तो इनका 4th CSL सैटर्न है, जी 4th CSL सैटर्न है शनि। शनि सन तो इनके लिए सन के स्टार में है और मरकरी के सब लॉर्ड में है, और शनि बैठा है इनका 2nd हाउस में। फाइनेंस से रिलेटेड कर सकते हैं ये, और फाइनेंस की जो कॉमर्स। अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाना चाहिए? इंजीनियरिंग का अगर इनका रुझान है देन फाइनेंस का ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज्यादा ही भाई अभी साइंस के इंक्लाइन है साइंस से, तो वो भी ठीक है, आगे जाके साइंस लेके भी कई बार क्या होता है इंजीनियरिंग करके एमबीए करके फाइनेंस और इंजीनियरिंग को कंबाइन कर देते हैं, आजकल तो इतना ज्यादा इस चीज का चल रहा है, तो वो चीज भी जा सकती है, लेकिन फाइनेंस का ज्यादा अच्छा लग दिख रहा है इनका, तो कॉमर्स साइड ज्यादा बेटर रहेगी। और ओवरऑल ऐसे बाकी इनका फ्यूचर वाइज ठीक है? फ्यूचर वाइज ऐसा है ना, एक्चुअली अभी 10th में ही है बच्ची, जी 15 साल की होगी उसकी एज, जी तो अभी बहुत ज्यादा चीजों के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें खाली अभी उनकी पढ़ाई के लिए ही फोकस रखना चाहिए, और हेल्थ अपना सही, मतलब हेल्थ तो सही है, जी उसी पे फोकस करेंगे। अगर बहुत ज्यादा आगे का सोचेंगे तो हम प्रेजेंट को जीना भूल जाएंगे, जी प्रेजेंट के बारे में हम सोचना भूल जाएंगे, और फ्यूचर के मान लें कुछ ऊपर नीचे कुछ अगर मैंने कुछ बता दिया और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्रेजेंट को छोड़ के आप फ्यूचर में लग जाओगे। तो प्रेजेंट अच्छा रखेंगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा ही होना है। जी। थैंक यू मैम। वेलकम। Lubomir, please ask. Hello. 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 Well, my question is, what is the best profession for me? Suvenduji, please answer this. Yes, I'll I give you will my try. I will try. Yeah. yes. Here, I give you Hello. my personal data and my Kindly question. repeat again. Kindly repeat again. Do you see them? Acharya Raman. You have given the question to Suvenduji. It is in the chat, Suvenduji. Hi, it is in chat. Just Yeah. a minute. Bandre Bulgaria. Oh, conditions. The date 70s. 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 Morning. Okay. 17th of June. Right now, but decide what to put down. Is a Gemini rising ascendant. It is a Mithuna Lagna, Kumbh Rashi, Dhanishta Nakshatra, Chandrama Ko. The rising sun is Mithun. What is the answer? Kindly repeat your question, sir, again. The question is, what is the best profession for me? Are you asking for business, job, or that kind of thing, or any specific domain? What is the best suitable specific domain? I'm a psychologist by profession, but I have been unemployment and without a client for a long time. That's why I'm asking, maybe there is another good profession for me. Do you understand me? Yes.
got your question. Raman sir, Yeah, mm, do you have this data in your dashboard? let me share with you. Just Chat charger. चैट्स में जाएंगे तो आ रहा है राइट साइड पे। 5%. Yeah, it is available in the chat. No, Yeah. sir. I am not talking about that. मैं पूछ रहा हूँ कि आपके डैशबोर्ड मीन्स आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में ये डेटा ओपन है? अगर डेटा ओपन है तो मैं कुछ चीजें इस कुंडली में मार्क करूंगा, तो इसके बारे में मैंने कहा, क्योंकि नहीं, मैंने आ, ओपन नहीं किया अभी। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज का अगर ध्यान दिया जाए तो 10th हाउस का सबलॉर्ड इज कम्प्लीटली एफ्लिक्टेड मीन्स कंटिन्यू डिसकंटिन्यूएशन इन प्रोफेशन इज प्रॉपर्ली सीन. So there have no such concrete profession after such good qualifications. In psychiatrists, there have studied. Means the person is studied psychology already. That means the person is well qualified. But it's if you looking into his 10th sublot, it is completely afflicted. It is showing long gap or discontinuation from the profession. That's why I told you, if you possible to note it down the complete data in your horoscope in your software, then I can explain it very clearly. Because 10th house sublord is Jupiter itself. If you looking into this, Jupiter placed at a 11th definitely, but Jupiter's nakshatra lord Venus itself placed at a 12th. Jupiter sublord, that planet is Mercury. Mercury as a Lagna lord placed at a 5th and 12th and lord of 5th. So except 11, there have 3 negative planets for the profession. So this horoscope not showing any long-term process in professional terms. This horoscope showing discontinuation, and again if the person will start the profession, then it will break again. Okay. And if you looking into the till 2011, that Jupiter dasha is already over. Right now Saturn dasha is running till 2030. If I looking into the Saturn placement, Saturn is not at all very bad. Saturn is not at all very bad, but in terms of profession, there after Saturn, there Mercury, Ketu, these two sub periods are completely afflicted. Then Venus has some hope. Venus, Sun, and Moon are showing some hope, but from Mars, again the same conditions appear. So if I mark your profession, then the single professional route will not showing any concrete conditions. So break in the profession is primarily mark, and after break the profession will again start and again it will irregular. Thanks. Okay, Mohinder Manav Goyal ji, please give your questions, sir. Thank you. Thanks, Joel. Thanks. Thank you. Yeah. You are muted, Manav Goyal ji. The question is for me? No, it's not for you. Mr. Mohinder Manav Goyal, please give your question. You are muted. Please unmute yourself. हेलो Yes, yes. अच्छा थैंक यू जी. बेटे का मैचिंग के बारे में क्वेश्चन था जी कि ही इज इन यूएसए एंड देयर इज अ गर्ल इन क्वेश्चन हु इज आल्सो वर्किंग इन यूएसए तो उनकी मैचिंग कंपैटिबिलिटी शुड बी गो हेड और तो This is your son's choice or your choice? नहीं सन्स चॉइस Okay. The girl is They- born in India? born in India, both are born in India, Okay. and they have met by chance Okay. 2-3 months back. 2-3 months back. Okay. And he wants to marry her now. Yeah. Okay. Give me the birth detail of the girl, please. It is 14th December 1991.
Time is Hmm. 2:50 p.m. Place Chandigarh. Okay. So this girl happens to be an Aries ascendant and the moon sign is Aquarius. Right now she is running through the dasha of Mercury and the antara which is going through is of Mars. Okay, Mars, Sun, Mercury are conjoined. Let me share the chart also. Na? That will give some perspective. So for this girl, Sun, Mercury, Mars are placed. Sun and Mars are in the 8th. Mercury is in the 7th. Rahu is in the 9th. Okay, now coming to her. Seventh CSL is Venus. Venus is placed in the star of Rahu. 5th is Ketu. 11th is Mercury. Mercury is in the star Saturn, Jupiter. Ketu, Rahu, Venus. 7th house. Venus is in the 6th. I wouldn't recommend, sir. Rest is your wish. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Chart is not good for a marital life. Anyways, so Oh, thank you. Mr. Murli, please come, sir. Hello, sir. I'm Murali calling from Coimbatore in Tamil Nadu. Yeah. I'm just asking for my son. Okay, who's Sandeep, ji, currently... answer this. Hello. Yes. Hello. Yes. Can I give the details? Yes, yes. Yeah, my son was born on 31st of May 1996. 1996. Okay. 31st May 1996. Yes. The time was 8:48 in the morning. 8:48. Okay. Okay. He was born in one place called Dindigul in Tamil Nadu. Dindigul. Dindigul, yes. Dindigul. Yeah, it's a very known place, sir, Dindigul. Yeah. Spices are there, no, in Dindigul? Yes, sir, near Kodaikanal. Yeah, okay, near Kodaikanal, yeah. Yeah, I've been to Kodaikanal, Madurai. Yes. So all that you... Gemini Lagna and Venus in Lagna. So what's your question? What is employment and marriage prospects, sir? Employment. He is now 28 years old. Yes. He's completing his PhD in another 6 months. So we want to know about his employment and marriage prospects. PhD in what subject, sir? In artificial intelligence and machine learning, sir. In USA, he is doing. Very good. Generally running through Saturn, Dasha and Ketu Antardasha. So Saturn and Ketu all together, please. Okay, so if we see in the slot, okay, 10th CSL is Rahu, and Rahu is placed in the nakshatra of Moon and Moon. Rashmita ji, next you will be you, okay? Okay, thanks. Yes. So, yeah, what profession you said? He is in artificial intelligence and machine learning. So Yeah. computer science related. Yeah. So what he now at present wanted to do further, which field he like to join into? Oh, he's not yet completed his PhD. Maybe Okay. under 6 months he will complete his PhD Yeah. and then look for a job. Yeah. And then we also want to arrange for his marriage. So basically we want to know about his employment and marriage prospects in the next 1 or 2 years. Yeah, let's if we talk about his profession. So assistant CSL is Rahu and the Moon
and moon plays in 5th house. So the Saturn Ketu is in Pisces 10th house. Yeah, it's good for him as if I say like in data science, he can excel into that, or like software developing side. So it will be much better for him as Ketu is showing in the 10th house, and along with the Saturn, and Saturn being 8th and 9th house lord. So that is better for him. So if we talk about marriage, so marriage let's say Saturn get same. Presently he's running in Jupiter 26. Yeah, marriage is a bit delayed. Marriage will be a bit delayed, but if we see that presently is running the Saturn and Jupiter Dasha, and Jupiter being into the 7th house, so it will be a little bit delay. It will give a little bit delay as 7th house Kaspal CSL is Mercury, and Mercury in the Venus nakshatra, and Venus is in Lagna and a retrograde. So it will give a bit struggle, we see, in marriage. So it will take 2 to 3 years, we can say. After 3 years, it is possible. Or it may take another 3 years, sir. Yeah. This So job, getting a job, is it possible next year? yeah, job is possible, but as I said, like in data science or in some, but I mean to say, with the field he has done, his education will not be his profession. He has to do some other related profession. He must see that. Data science or some other you told also? Yes. Software related? Yes, that is better for him. And the next year, is there a good chance for him to get a job, sir? Yes, by next year he can. Yes, actually after this Jupiter, Saturn and Jupiter Antardasha is running, so it will give a good chance for him to join a good job. Yes, sir. So Yeah. he is actually doing his PhD in USA. Whether he is going to get a job in a foreign country or he has to come back to India, sir? No, after completing this PhD, he will come back. He'll come back. Okay. Yeah, sure. Okay. Thank you, Mr. Only marriage is getting delayed by another 2 to 3 years. Yeah. Okay. Okay, sir. Thank Rashmita you. ji, yeah, thank you, sir. Thank you. Rashmita ji, Thank you. put your question. Babita ji, take the question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sound is not. आवाज नहीं आ रही. Rashmita ji, your net is not working. Your net is not working. Go near to the router. आवाज नहीं आ रही. नहीं, not getting. Not understanding anything. No. Bad network. Okay. We will try after some time. Nagula Srinivas, please put your question. Unmute yourself. Yeah. Babita ji, take the question. जी बताइए. I'm calling from Kashmir. I want to know about my career. Which field will best suit for me? आपका डेटा दीजिए प्लीज. 28th December 1991.
दिसंबर 1991, ओके। टाइम 9:25 a.m. 9:25 AM। प्लेस करीमनगर तेलंगाना। दोबारा बोलना सर। करीमनगर, करीमनगर। करीमनगर। KARIM NAGAR एक ही आएगा। ठीक है सर। ओ 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। गलत है। इससे अभी आप क्या कर रहे हैं सर? मैडम प्रेजेंट डे वर्किंग एज लेक्चरर इन कॉलेज। क्या दोबारा, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे? मैडम प्रेजेंटली वर्किंग एज लेक्चरर। सर आवाज इनकी क्लियर, योर वॉइस इज क्लियर, साउंडिंग नॉट क्लियर। हाँ समझ में लेक्चरर नहीं आ रहा। लेक्चरर मैडम, टीचर, टीचिंग फील्ड। लेक्चरर, ओके ओके, लेक्चरर, कॉलेज में लेक्चरर है, ओके ओके। तो अभी सही नहीं चल रहा है क्या वो सब? सॉरी मैडम, डिडंट गॉट यू। Are you looking for a change or something like that? Yeah, sir. I'm thinking about a change. But meanwhile, I want to whether can I get into government sector or not. I'm trying that. If not, means I want to change my field. So, is there any better chances for me or not? करीमनगर भी 2 दिखा रहे हैं, एक तो 79 ईस्ट 9 है और एक गूगल 88 कर लीजिए फटाफट। ओके। करीमनगर इज नाउ इन तेलंगाना, नागुला और इन आंध्रा? तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना, और करीमनगर तेलंगाना गूगल कर लीजिए। सेवेंटी नाइन, ओके डन। अभी आपकी करंट दशा चल रही है जुपिटर। जुपिटर में जुपिटर ही चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। तो आप चेंज ऑफ जॉब के लिए देखना चाह रहे हैं? चेंज ऑफ जॉब, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? अच्छा, सरकारी नौकरी और चेंज ऑफ जॉब, ओके। 10th cusp of Lord is Rahu. Rahu in Venus and Moon. boy. Rahu শুনছো? is 5th and Taurus 4th and Libra is 9th. आपका प्रोफेशन तो इसमें मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ही दिखा रहा है, तो वो आप अपने प्रोफेशन में इसी में रहना चाहिए आपको, लेक्चरर वगैरह में, जो अभी आप एजुकेशन का दूसरे कर रहे कॉलेज हैं। में जॉब कब लगेगी या सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? और सरकारी जॉब का तो इनका नहीं दिख रहा है, सरकारी जॉब नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। सन से कनेक्शन कोई है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम चांस है, मतलब कम रिलेशन दिख रहा है। स्टार स्टार लेवल पे नहीं दिख रहा, खाली सोर्स लेवल पे है। स्टार और सबलोड उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो कोशिश कर सकते हैं। और क्या पूछा सर इन्होंने? दूसरी जॉब, अच्छी नौकरी कब मिलेगी? अच्छा हाँ ठीक है। जुपिटर में अभी इनका चल रहा है, जुपिटर में जुपिटर ही चल रहा है, जुपिटर वीनस जुपिटर। Yes, 9, 8, 2, Sagittarius 12. Pisces is not there. जुपिटर में तो अभी है नहीं, मतलब 2026 अगस्त तक तो अभी कोई जॉब चेंजेस का नहीं दिख रहा। उसके बाद हम सैटर्न को लेते हैं।
Saturn में Mars. Saturn is in 12th. Moon 9, 8, Cancer 7. Uh, 11, Mars is 10th. Saturn is 1, 2. Deveshji, you will be next. Moon Thank you, sir. का है 3rd, Aries, स्कॉर्पियो. सैटर्न की दशा में कुछ चांसेस बनेंगे आपके, जो कि लगेगी अभी स्टार्ट होगी 2026 अगस्त के बाद. तब आपका मेरे हो सकता है काम. हाँ, तब हो सकता है. और अभी अभी कोई चांसेस नहीं है जॉब चेंजेस के. जॉब छूटने के हैं, मतलब जॉब चेंज का भी आपके मन में आ रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये सब चांसेस हाँ, हाँ, अब्रॉड लेकिन एरिया. हाँ, जॉब लगने के चांसेस है. सैटर्न सैटर्न की अंतर्दशा चालू होगी 2026 अगस्त में. उसके बाद इसके फलित होने के वो हैं, योग है. पर अब्रॉड में मेनी चांसेस. क्या कह रहे हैं सर? अब्रॉड अब्रॉड. अब्रॉड जाना चाह रहे हैं. अब्रॉड का What subject you teach, Nakula? What subject you teach? No, physics, sir. Physics. 12 CSL is Saturn. अब्रॉड के चांसेस नहीं दिख रहे. No. नो. Okay, Deveshji, please come with your question. Thank you, madam. Yes, sir, I have put in the Nakula, thanks chat. for joining. Yeah. तो चैट में पेश किया मैंने. 23rd बताइए. December 74, 23rd December 74. 4:10 AM, भरूच, गुजरात. Okay. December 1974, 4:10 AM, Bharuch, Gujarat. What is the question? Question is related to job abroad. I'm already doing a job, and I want to go abroad, and I'm running into huge debt right now. So You are doing job abroad or in India only? India. Okay. You have been to abroad earlier, right? Yeah, I've been to Thailand for 8 years. Yeah, I can see that. 11 to 18. When did you come back? 2018, December 18. 18, okay. So 2010 to 2018 you were abroad. Yeah, January 11 to 18. Which country was that? Thailand. Thailand. Yeah. Okay. You must have met Rahul Gandhi there sometime. No. So, he keeps frequenting there, no? Yeah. So you are running the period of Rahu. Rahu Dasha is going on, and the Antara is of Rahu itself till 19th of June 2026. If we see the significations of Rahu, Rahu is conjoined Mars. Rahu is in the star of Saturn above Jupiter, and Mars is also aspecting Ketu. And no planet is connected to Rahu is connected to Mercury in any way. Mercury is okay. Mercury is in the star of Ketu. Okay, you will go. And timeline, sir? And the timeline will be Rahu. Mercury is gone. Ketu is gone. Venus is 2, 1. Venus, Rahu. Yes. Have you applied somewhere? I'm not getting any response. Have you applied somewhere? Yeah, I have applied, but I'm not getting any response. Okay, by December this year or in the month of January, it is very much likely that you will be again doing something in abroad. Okay. And What was the sir, next regarding, thing? yeah, please. What was the next thing you asked? Okay, regarding finances, sir. Finances.
What exactly regarding finances? Sir, I'm earning completely good, not too good, but yes, it's good. But I'm not able to save. No savings, nothing at all, and the money comes and goes. Sir, it happens with each and every individual born on this planet since the universe has started. Give me something else. सर डेट बहुत ज्यादा है मेरे पास में. Okay. So this debt is from bank or personal loans? From I mean, bank. You bought home or what? Car? What you did? The home is also there, and then daughter's education loan and other personal loans and lot of things are there. Okay, no problem. Gradually you will repay. Okay, sir. Don't worry about it. Yeah. Thank you, sir. Right. Thank you. Karthik? Yes, sir. Yes, I'm there very much. Yeah, Thank you. please tell. Yeah. Hi. So my date of birth is 29th February 1984. 29th February 1984. Yeah, place of birth is Arakkonam near Chennai. Arakkonam. 29th February 1984. Leap year. Yep. Yes, leap year. Okay. Arakkonam, Tamil Nadu. Yeah, no, Arakkonam. Yeah. And time of birth is 22:37. Just give me a second. Sure. Karthik, right? Yes. What's your question? Sir, so my question is like in June 2022, I was denied promotion and for the same post, I have applied again now. What do you do? I am a teacher. I'm actually a lecturer in a college. Government college? Yes. Okay. So जून 2022 में मेरी प्रमोशन डिनाई हुई थी. अब उसकी फिर से क्या बोलेंगे एडवर्टीजमेंट आई है. आई हैव अप्लाइड. आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ श्योर आर माय चांसेस कैसे हैं अभी इस बार. Okay. और ओके फर्स्ट लेट आप ये बता दीजिए. 10th CSL Ketu, Sun in Rahu star, Ketu in Mercury, Sun in ठीक है, good. So now you are running the period, main period is of Saturn till 2043, started from 2024 August. The sub period is of Saturn till 11th of August 2027. Saturn is placed in the star of Jupiter, sub of Saturn. Now if we see Jupiter is ruling, we see in the horoscope, Jupiter is ruling Pisces, but Saturn is not ruling any of the 10-11 houses, but 6th house definitely is there, which is a light in the darkness. You are a Libra ascendant, so Saturn is the ruler of 4th, and I don't think it is going to happen. ओके सो एक बार और डिनाइल का चांसेस है. Yes. ओके और सर ये कब तक चलेगा ये? Mercury will come. Mercury is in Rahu star, Jupiter. So no. Okay. Okay, Jupiter is actually aspecting the 11th house, so 5th level signification is there. Second house is also getting completed because Jupiter is placed in the second cusp in the KP chart, and Jupiter is ruling the 6th house, but Moon is not there. If we see Moon is in the star of Mars above Rahu. Okay, from Rahu, Moon is getting connected, and Saturn was Jupiter, Saturn. Okay, no. If we come to Mercury, Mercury is in Rahu star, Jupiter. Okay, in the period of Mercury, you can expect. Okay, so that is after 26. Some आपने कुछ बताया अभी. Mercury will start from 11th of August 2027 plus minus 10 days. अच्छा 27. ओके ओके सर और एक क्वेश्चन और था कि जैसे करियर को लेके ही ब्लॉक्स बहुत आते हैं मतलब मेहनत तो करते ही हैं बट प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो ये पीरियड कब तक चलेगा ऐसे? कब से आ रहे हैं ब्लॉक्स? ब्लॉक्स तो सर है ही 22 जून में ही एक बार मेरा वो हो गया था. जून 2022 में प्रमोशन डिनाई हो गया था. उसके पहले 20 में हो गया था एक बार. 18 में ज्वाइन किया था, 20 में हो गया था, 22 से ही मान लीजिए. जून 22 when the interview happened. ठीक है.
So these blocks are going to remain because your chart itself is having some, your chart is like the roads of India, having many potholes. So, you have to go with them and be at peace, ओके, right? ठीक है, Right. Thank you, Mayur. ओके, थैंक यू। Sorry, Karthik. Yeah, Mayur, please. सर मैंने अपना क्वेश्चन टाइप कर दिया, इवन डिटेल्स भी दे दिया है पूरा। Now you have to आप speak देख it because Sandeep ji, Subhendu ji कहाँ गए? Subhendu ji left. Subhendu ji is not. Okay, Babita ji, take this question. जी बताइए सर, डिटेल दीजिए अपनी और क्वेश्चन भी बताना। जी मैम, मैम मेरा डिटेल है 5 जुलाई 1995 जी आगे। एंड मैम टाइम टाइम है रात के 9 बज के रात के 9 19 बजे। मिनट 53 सेकंड 19 मिनट 53 सेकंड। ओके, प्लेस प्लेस इटारसी MP, इटारसी। ITARSI। You are from Itarsi. यस सर। What does your parents do there? सर वी आर हैविंग बिजनेस ऑफ क्लॉथ, टेक्सटाइल बिजनेस। We'll talk later on WhatsApp. श्योर सर। मैम शैल आई स्पीक? यस यस। मैम मेरा बोल। क्वेश्चन स्पेसिफिक प्रोफेशन को लेकर है। हाँ जी लाइक बताइए। वांटेड टू नो कि क्या प्रोफेशन ऑप्ट किया जाए जिससे कि वेल्थ जनरेशन हो जाए। तो अभी आप करंटली भी तो कुछ कर ही रहे होंगे ना? मैम करेंटली मैं एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो अभी आपका प्रोफेशन अभी तक कुछ कुछ भी नहीं रहा क्या? 30 ईयर्स की जैसे आपकी एज है, मैम अकॉर्डिंग टू योर एज डेटा। 30 ईयर्स की है, बट मेरे मल्टीपल मल्टीपल वो रहे हैं कि लाइक जैसे कि आप जानती है कि मरकरी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो वैसा वाला केस है मेरा भी। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब फील्ड्स बहुत सारे चूज हुए हैं लेकिन किसी में भी सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं शायद मे भी अपने बर्थ प्लेस पे ही वर्क कर रहा हूँ इसलिए, या मुझे बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए। तो आप तो खुद ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको तो खुद ही काफी कुछ पता होगा। मैम पता बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि श्योरिटी और क्लियरिटी नहीं होता है कि लाइक कि एश्योरेंस कि हाँ मैं करेक्ट हूँ। वो थोड़ा सा करेक्शन वो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा आपका गाइडेंस अच्छा। चाहिए थी किसी से। ओके, तो आपका अगर फाइनेंस के हिसाब से देखते हैं तो जैसे हमारा सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, ठीक है। सैटर्न जुपिटर के स्टार में है, मार्स के सब में है। जी तो हम सैटर्न को देखते हैं वो क्या दिखा रहा है। सैटर्न इज इन फर्स्ट हाउस। तो आपको काम तो मैनुअली, मतलब आपको जैसे होता है ना कि सेल्फ, आपको आप अपने आप को खुद यूज करोगे। जैसे एक लेक्चरर की नौकरी होती है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है, वो अपना काम खुद करता है, तभी आपकी इनकम जनरेट होगी। बिजनेस में तो क्या होता मैम है, जैसे बिजनेस चल रहा होता है कई बार, मतलब ओनर हो ना हो लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा हो। लेकिन जी आपके काम में ऐसा रहेगा कि आपको खुद ही इन्वॉल्व होके आपको काम करना पड़ेगा कुछ भी। एस्ट्रोलॉजी आप बता ही रहे हैं। जी मैम जैसे मेरा वो भी फील्ड है ट्रेनिंग का, हाँ, तो वर्कआउट ये जिम जिम ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग। टीचिंग का है, इसी तरह का प्रोफेशन आपको सूट करेगा। ओके। मैम अगर 10th CSL से देखें तो आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं किस टाइप से, क्या टाइप ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए इसमें? जी एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए। जी बिल्कुल मैम। 12th Pisces। आप बाहर भी जा सकते हैं, कि आपके पास है पॉसिबिलिटीज बाहर जाने की? मैम मेरे पास पॉसिबिलिटीज तो हैं, बट मेरा खुद का ही मन नहीं होता है, क्योंकि मतलब अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड पर्सन हूँ लाइक। अच्छा, तो लेकिन 12th हाउस इज आल्सो आल्सो फॉर आइसोलेशन, तो आइसोलेशन में रह के आप काम करेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाइक ऑलमोस्ट लाइक मेरा कोई फ्रेंड्स एंड ऑल सब कोई आउटिंग नहीं हो, किसी कोई मतलब किसी टच नहीं, कुछ नहीं है मेरा। नहीं तो 12th हाउस आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आइसोलेशन में ही रहते होंगे फिर तो आप मैम अकेले। 20 जी। भाई इटार से सुन के तो नीलम ध्यान आ गया। क्या ध्यान आ क्या गया ध्यान सर? आ गया था? नीलम रेस्टोरेंट। हाँ सर वही। सर की कुछ यादें जुड़ी होंगी है ना।
आपका ये कंसल्टेंसी वगैरह बिजनेस भी थोड़ा बहुत, लेकिन वही ना, बिजनेस में फिर वही चीज आ जाएगी। बिजनेस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 7th हाउस भी दिखा रहा है इधर, मरकरी है जो हाँ आपका। हाँ, हाँ, तो 7 उसमें हाउस आप, भी दिखा रहा है। तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस मरकरी मार्स को हमको ये देखना पड़ेगा कौन से साइन में है। अ, नहीं, मैम बिजनेस लियो नहीं में चलेगा, है। वो फिक्स साइन में है ना, तो बिजनेस इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ मैम, फिक्स, बिजनेस फिक्स्ड है, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट ऐसे हैं कि लाइक घूमे घूमे आते हैं, एक आध बार अच्छा मोटा पैसा देंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, रिपीटिंग नहीं है, हाँ नहीं, वो क्योंकि वो फिक्स साइन फिक्स में है। टाइप है। हाँ, फिक्स साइन में है, हाँ, वो ब्लॉकेज दे रहा है आपको। वही तो वही आपका तो तो मैम, वो इशू। यही, हाँ, आपके लिए आप थोड़ा सा टीचिंग वगैरह की तरफ भी, जैसे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो उसको टीचिंग वगैरह का प्रोफेशन बनाने की कोशिश करें, ऑनलाइन आए, ये चीजें कर मैम सकते हैं। मेरा यही अभी मतलब करेंटली मेरा यही गोल है कि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ के टीच करूं। बट हम्म। मेरे फैमिली क्या है कि बिजनेस बैकग्राउंड से, तो वो ऑब्वियसली उनका एक एंड गोल यही है कि बिजनेस ही करना है, बिजनेस ही करना है। और एट द एंड ऑफ द डे कि अगर मैं पूरा चार्ट अगर निकालूं, तो वो यही लगता है मुझे कि बिजनेस आएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्यों ना टीचिंग को ही बिजनेस पर्पज पे यूज किया जाए। तो उसी को आप मिक्स कीजिए ना, जैसे कि बिजनेस करें आप, इसी के जेम स्टोन वगैरह होते हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको आप कनेक्ट ओके करके टीचिंग भी करें, कंसल्टेंसी भी दें, और उसी का बिजनेस भी करें, एक ज्योतिष संस्थान खोल देते हैं उस तरह का। ओके। तो मैम क्या ये मतलब जो आप जैसे आपने बोला कि ये 10 CSL मरकरी है, तो मरकरी थोड़ा एनालिटिकल बिजनेस के टाइप से भी दिखाता है। हाँ, एनालिटिकल दिखाता है, आप जैसे बैंकिंग वगैरह का भी दिखाता है, लेकिन अभी और इस एज जैसे में आपके पास क्वालिफिकेशन है नहीं है, वो तो फिर आपको ही पता होगा। नहीं, बैंकिंग का तो नहीं है मैम मेरे पास। एंड हाँ तो, ये क्या बोलते जैसे, ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे बैंक ये जैसे मार्स और सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन दे रहा है 10 CSL में, तो क्या जी, एस्ट्रो वास्तु हो सकता है? एस्ट्रो वास्तु, हाँ, मार्स, हमारा ये मकान भवन, इनसे मार्स और सैटर्न दोनों ही का भूमि के भवन के सबके कारक हैं, तो एस्ट्रो वास्तु, वैसे 4th हाउस आ नहीं रहा है इसमें, क्योंकि 4th हाउस आता है तो वास्तु आपके लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ हाँ हाउस मैम किसी बड़े वही, बट कनेक्ट हो रहा है कि, हाँ, एक मिनट, टॉरस है ना 4th हाउस, मरकरी, हाँ, कनेक्ट हो तो रहा है 4th हाउस में, मरकरी तो बैठा हुआ है, कनेक्ट हो रहा है आपका, बिल्कुल क्लियर, जो सोर्स है हमारा फोर्थ तो हाउस ये में ही भी बैठा सही हुआ है। रहेगा। हाँ हाँ, वास्तु एस्ट्रो यही। वास्तु भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, तो क्या मतलब जो लोकेशन है मेरी, अभी करंट लोकेशन में बर्थ टाउन में हूँ, तो बर्थ टाउन में अभी 30 ईयर्स हो गया, बर्थ प्लेस पे हूँ, तो 30 ईयर्स हम्म। में कोई प्रोग्रेस और कुछ नहीं ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस है, दूरी का हाउस है, अगर दूर जाके आप कुछ करते हैं तो वो, इस चीज को आप ट्राई करके देखें। कि थोड़ा टाइम में अपनी मतलब एक MP से जी दूर जी, जाके कर हाँ, कारोबार एमपी करूँ। से, और दूर नहीं, थोड़ा ज्यादा दूर जाना, क्योंकि 12th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस। यस यस। तो वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी देखें इस तरह की, कि वहां पे जाके आप ये सब चीजों को कंबाइन करें, वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को, साथ में इसके जो भी, वास्तु में भी हमारे पास काफी चीजें होती हैं बिजनेस करने के लिए, और टीचिंग, ये सब आप जी। कंबाइन करके आप इसमें कर सकते हैं, अच्छा रहेगा ये आपके लिए। ओके ओके। और दशा भी ऑलराइट, देख ओके, लेते थैंक हैं यू एक मैम। बारी आपकी, हाँ, दशा भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। जी दशा, बताइए, हाँ अभी दशा करंट तो देखा। जुपिटर हाँ, का क्या बोल रहे हैं सर, दोबारा बोलना। जी, अभी करंट दशा तो मेरा जुपिटर का ही चल रहा है, तो जी जी, मेरा हाँ खुद इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स टीचिंग ही जा रहा है अभी। हाँ, टीचिंग ही जा रहा है, तो वो सब चीजें आपको लिंक कर रही हैं आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से लिंक कर रही हैं सब कुछ, तो आप इसी से रिलेटेड आप एफर्ट ला लिए, तो इसलिए आपके लिए मतलब सही रहेगा ये। Mayur ji, मैम तो ये, all okay. जी 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 सर। Okay, जी Rashmita, सर। you continue now. Yes, Shubhendu ji, please take this question. I will try, sir. Yeah. I will Sir, can try. you hear me now? Can you hear me? यस Much यस better, यस। much better, much better. Okay, okay, thank you. I have also given in the chat. It's just regarding my marriage. I'm very, very worried. Kindly repeat your birth details, madam. Yes, it is 16th of May, 16 May, 16th of May. Okay. 1989. 89. Okay, birth time. Yes, and 8:50, 8:50 a.m. 8:50 a.m. in the Okay, fine. morning. Birthplace. Yes, and Birthplace कहाँ है? Calcutta, West Bengal, India. Kolkata, Kolkata. Kolkata, West Bengal, India. You can speak in Bengali also. Oh, acha. Hello, Thank you so Akshay. much. बट स्पीक I'll इन still इंग्लिश और means if हिंदी ओनली।
Hindi or English. Yes, no? because others will not understand. Don't speak Bangla. Exactly. Please. Don't Okay, mind. okay, okay. Okay. ঠিক আছে, okay. No problem. So I just want to Okay. know that, my family is also very worried that when will I be getting married? I've been trying many times Okay. through arranged process, but like strong possibility. And I just wanted to know about the groom, like, because since we are keeping all options open that can be divorced or never married. So I just wanted to know that whether the groom will be previously married or would he be someone never married? And will he be someone from nearby my location or Okay. far? These are my Okay. questions. So I will try to explain the questions one by one. Okay. Okay. Okay, sir. Don't mix it together. Just trying Oh, to share it yes. one by one. Okay, sir. Raman sir, Yeah. may I ask something? That is there have any system to share the screen from my end? Yeah, you can share it on Zoom. Okay. Option, no? Okay. 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 मैडम आपको स्क्रीन शो हो रहा है या Yes, सबको yes, स्क्रीन yes. दिख रहा है? हाँ. यस सर दिख रहा है. So this is the chart. The Okay, birth sir. details is 16th of May 1989, morning 8:50, एकदम, हाँ. and Yes. place is Kolkata. Kolkata. First Yes. of all, I need to cross check the panchang. Is it मंगलवार का दिन जन्म है? मंगलवार, yes, absolutely. Okay, ठीक है. शुक्ला एकादशी का जन्म है. मिथुन लग्न है Fine. and कन्या राशि, हाँ. Okay, मिथुन लग्न 26 degree of 32 minutes and with Kanya Rashi, it is a Hasta Nakshatra first chara. Right. Okay, first of all, moon. So first of all, I have to check the Lagna sublord, so that is have any connection with moon or not. Just Okay, a minute. Okay, sir. Rashida, you are divorced? No, I have never been married, sir. Never. I didn't have any relationship also. No. Raman sir, no. Not like that. Not like that. There, the Lagna sublord is Ketu. Ketu has any connection with moon or with star? Moon getting the own star. Ketu has no such attachment with the Ketu. Okay. Moon and Jupiter. Ketu has any connection with Jupiter itself. Ketu has no attachment with Jupiter itself. So 8:50 के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन मे भी वर्क टाइम में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का जो नटाल मून का जो नक्षत्र स्वामी है वो लगन के नक्षत्र से खास कोई अटैचमेंट या रूलिंग प्लैनेट भी अगर क्रॉस चेक किया जाए तो थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशंस में है, तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हो सकता है. बट एज ऑफ नाउ आई कैन मूव ओनली विद द 8:50. So at first I have to check the Yes, the exact time. Certain. possibilities That is of accurate time. marriage. No. That you have shared 8:50. I have not doubting on your best of knowledge. Right. But the birth time is noted by the third party only. Okay, third party द्वारा noted होता है ये. डॉक्टर नर्स हेल्थ केयर सेंटर में जो प्रोवाइडेड जो प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी. राइट. वही. सो अप्स एंड डाउन होता है. ये हर किसी के टाइम में ही होता है. हर किसी के टाइम में 100 हॉरोस्कोप में अप्लाइड होता है. ठीक है, तो ठीक है, उसको मैं सबसाइड करता हूँ. अभी देखते हैं कि केतु किस कंडीशन में. 7th हाउस सबलॉर्ड इज केतु. 7th house sublord being Ketu, Lagna and 7th sublord is Ketu. Where is Ketu placed? Ketu placed at a Rashi of second. Okay, second भावा में है. केतु का खुद के ही नक्षत्र में है कि लेकिन केतु का राशि स्वामी इस कुंडली में बना सूर्य. केतु के ऊपर दृष्टि किसी भी प्लैनेट का नहीं है, तो सूर्य का ही फल इस कुंडली में प्रॉपरली आएगा. सूर्य जो है थर्ड हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में प्लेस्ड है. सूर्य अपने ही नक्षत्र में है और उस नक्षत्र इसका गुरु बना. तो गुरु कौन से भाव का? सप्तम और दशम का कार्य होकर 11वें में बैठा हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग कुंडली जो बना हुआ है, मैरिज तो प्रॉमिस्ड है, इसमें तो कोई शंका नहीं है. ठीक है, मैरिज इज प्रॉमिस्ड. देयर हैव नो सच क्वेश्चन. Okay, but the first condition, that is the certain there this horoscope is completely influenced by Saturn. अगर आप कंडीशन देखो तो ठीक है. तो क्यों किस तरीके से कि शनि और चंद्रमा इज एस्पेक्टेड बाय Saturn by its 10th aspect. It is called पुनर्पु.
मीन्स डिले और Okay. अनयूजुअल डिले टिल द वेरी एंड ऑफ द अवेलेबल दशा, मीन्स दशा में मैरिज रिलेटेड जो भी प्लैनेट्स हैं वो जब तक दशा में वेरी एंड तक अवेलेबल होगा तब तक ये एंड अच्छा करवा, तब तक ये डिले करवा सकता है। मीन्स इट इज करवा अबव, मीन्स इसका एंड पोर्शन, मीन्स इसका अवेलेबल टाइम जो है वो नियर अबाउट 45 तक भी जाता है। ठीक है, इन अरे बाप रे, प्रैक्टिकल अच्छा केसेस। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं ओके अभी कुंडली में अभी दशा क्या है और अवेलेबल टाइम क्या निकल सकता है। आई सी ओके सर यस गुरु का दशा आपका 2024 जनवरी से शुरू हुआ है, अंतरदशा भी अभी भी हाँ उसी का जी ही हाँ है, जी नेक्स्ट ईयर मार्च तक। ठीक है, पहले देखते हैं गुरु का कंडीशन क्या है। एग्जैक्टली गुरु सर राइट 7th हाउस में 11th में बैठा हुआ है। गुरु का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा कुंडली में सेकंड का लॉर्ड होकर कुंडली में बैठा हुआ है 3रे भाव में। और गुरु के नक्षत्र में कोई ग्रह खास कुछ ना, गुरु के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब गुरु सप्तम भाव का फुल रिजल्ट देने में सक्षम है। गुरु का उपनक्षत्र कौन बना, दैट इज बुध। अच्छा बुध कुंडली में लगन स्वामी 4th लॉर्ड होकर कुंडली में 11th में बैठा हुआ है। तो जुपिटर दशा इज कैपेबल टू गिव मैरिज, बट जुपिटर ओके दशा सर वो भी एंड पोर्शन में आ गया। जुपिटर वो भी एंड हाँ पोर्शन पे आ एग्जैक्टली गया, राइट सर राइट राइट वो दैट इज भी व्हाट हाँ एंड सर पोर्शन पे आ गया। अभी देखना पड़ेगा कि गुरु का कंडीशन 6th के साथ कहीं पे भी अटैच है कि नहीं है। यस, जुपिटर बिकम द सब लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, सो इट इज प्रोमिनेंट। अच्छा सो गुरु दशा जो है, गुरु दशा के अंदर प्रत्यंतर आपका बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है। राहु मैरिज नहीं दे सकता, उससे पहले मंगल वो भी मैरिज नहीं दे सकता। तो रहा बाकी सूर्य और चंद्रमा प्रत्यंतर में उपलब्ध है कि नहीं देखना पड़ेगा। सूर्य अच्छा सर ऑलमोस्ट ओवर, ऑलमोस्ट ओवर, सूर्य चंद्रमा ऑलमोस्ट ओवर। सो जुपिटर यस सर दशा हैज नो पोटेंशियल टू राइट गिव मैरिज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा शनि ऑल्सो नॉट, राइट शनि ऑल्सो नॉट कैपेबल टू गिव ओ मैरिज, आई होप। Yes, Shani also not capable to give marriage in this horoscope. So I have to look for the आई सी Budh Antardasha. Budh Antardasha, Budh getting 2nd, 3rd and 1, 4, 11. Okay. जुपिटर, बुध यहाँ पे 7 डिग्री कॉर्ड में, जुपिटर किसी भी तरीके से रेट्रो कंडीशन में नहीं है, बुध रेट्रो कंडीशन में है, मतलब सेपरेटिव कंजंक्शन अप्लाइड। सो बुध, बुध कंडीशन में बैठा हुआ है, बुध कंडीशन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली प्लैनेट दैट कैन गिव मैरिज, दैट ओनली 7th हाउस के ऊपर कंडीशनल तरीके से एस्पेक्ट किसी भी प्लैनेट का वो भी अप्लाई नहीं होता, सिर्फ मंगल के अलावा मंगल की ही दृष्टि पड़ा हुआ है। यहाँ पे अवेलेबल मैरिज के लिए अवेलेबल प्लैनेट्स अगर मुझे मार्क करना हो तो यहाँ पे सिर्फ जुपिटर, जुपिटर के सब में बैठा हुआ है सूर्य। तो सूर्य और गुरु और केतु, यही 3 प्लैनेट है। गुरु दशा में, अंतरदशा में ऑलरेडी ओवर। तो यहाँ पे हम केतु अंतरदशा से पहले एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, केतु अंतरदशा आने में काफी लंबा देरी है। एग्जैक्टली बिकॉज पहले सोचा था कि जुपिटर की दशा में ही मींस 2024 हो जाएगा। इंटरनेट Plans में भी भी नेटवर्क yes. में भी नेटवर्क इज नॉट disturbed. नेटवर्क डिस्टर्बिंग। यहाँ पे इतना मुझे डाउट अच्छा, है, अच्छा। 7th हाउस सब लॉर्ड, 7th हाउस सब लॉर्ड, क्योंकि केतु अगर होगा तो केतु अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड होता है, इतना देरी इस कुंडली में अप्लाई नहीं होता, हाँ इस कुंडली में अप्लाई नहीं होता है। अच्छा पुनर्पु रहने के बाद भी, पुनर्पु रहने के ओके बाद भी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बुध अच्छा को मार्क ओके तभी कर सकता हूँ अगर 7th हाउस सब लॉर्ड शुड बी मरकरी, देन मरकरी अंतरदशा ओनली गिव मैरिज। शनि अंतरदशा हैज नो पोटेंशियल टू गिव मैरिज, सटन में कोई मैरिज का कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता। तो यहाँ पे बुध आइदर केतु, कंफ्यूजन बिटवीन टू। और बुध अंतरदशा आते आते भी आपका उम्र लगभग, गुरु में बुध चलेगा 2028, लगभग 40, नियर अबाउट 40। माय गॉड तो अच्छा बुध अच्छा 40 to 42 के बीच में रनिंग रहेगा आपका, 40 to 42। तो बुध को ही अगर मैं मार्क करूं तो पॉसिबल, मोस्ट पॉसिबल मैरिज टाइम बिटवीन 39 to 43, बुध और केतु के अंतरदशा के बैरियर में। इससे पहले कोई मैरिज का कोई कंडीशन इस कुंडली में अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी मींस नॉट विद इन 2026 No, मींस no, no means no. There have ओके Jupiter Dasha and Jupiter Antardasha is running till March next year, but their Pratyantar Dashas, the available Pratyantar Dashas are Mars and Rahu only. So Mars and Rahu, if you अच्छा looking into this current screenshot, current screen, there you can find the राइट Rahu and हाँ Mangal script already. But these are not हाँ the concrete one. I just giving you the complete राइट condition.
If I mark the Mars, Mangal has the aspect over the 7th house. If you're looking into this horoscope, this Right. Lagna chart, cusp chart. Yes. So Mars only has I can the see that. aspect over the 7th house. And if you're looking into the conditions, Right. Mars has no star in it. Okay, Mars is untalented already. No, So sir. Correct. Mars has a slight chances to trigger the marriage. So Rahu Mars is running between Mars running between, sorry, Jupiter Mangal is running between, sorry, just a minute, Jupiter Mangal running between 2nd of October to 17th of November. So this will be the shorter time frame. This will be But the there is shorter no time frame. man, But no chance. yes, अभी तो नहीं. that is the condition. That is the condition. But if you looking into the Dasha and Antardasha lot, from the 10th of November, the Jupiter also become retrograde. So till 10th of November, they are away. So till 10th of November. 10th of November is not far. That is a 25 days from now. अभी से 25 दिन की देरी है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई पॉसिबिलिटीज मैं भी आपको दूंगा, ऐसा कंडीशंस मेरे लिए भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और बंगालियों के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे कंडीशंस में इस टाइम फ्रेम में बेसिकली मंथ ऑफ कार्तिक महीने में कोई भी मैरिज यहाँ पे होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, हम नहीं ठीक है। एग्जैक्टली सर, इन टर्म्स ऑफ राइट, करेक्ट सर, इंडिया Bengali culture, there have Bengali and Odia culture, there have no marriage conditions between Mercury between Kartik month, Kartik, Posh, Chaitra, this month and Bhadra also. So Bhadra, Kartik, Posh and Chaitra, these 4 months have no marital conditions in Bengali or Odia cultures. Okay sir. Okay, so right sir, we can't yes, we absolutely. can't give hope as of now, but you have to wait for the Mercury or Ketu, because I have doubt between two, that 7th house sublord might be there, might be Mercury. If Mercury, then Mercury Antara, Mercury Bhukti will definitely give marriage. If not, then you have to wait for the Ketu only. Means sir, then which years, matlab particular age between 39 to 43. Which years have between 43, age of 39 to 43. 43, that will be the barrier. If the 7th house sublord is Mercury, then marriage I will specify the year also. If in case the sublord 7th house sublord being Mercury, then I trying to specify the year during 39 to 42. Okay. Between this time frame, just a minute. 25 to okay sir. 29, 30, 7. No, it reach near about 42, 43. After, yes, near about 42, 43, near about. So these are strong possibilities, sir, or just it is not strong possibility. If you get married, then that will be the time frame only. Okay, Rashmita ji. We'll have to close now. So the last question I had in the same question, that will just one question, that sir, will the groom be someone already married before or never married? Just this much will be. Yes, likely that. So he will be married before. Yes, married before, or yes, I can say that. I can say that. Also, I can say that. I can say that. Can't hear your voice properly. Can't hear your voice properly. It's breaking. Your net is gone. Achha, means. Now can you hear, sir? Now, hello. Means will he be from nearby my house or very far off? Just trying to give him. Where is the Mangal? There is a Mangal, that is a Jupiter. It is not very near. Okay. It is not from local distance. No, it is not from local distance. No. And will be someone who is already married before. Means yes, most likely. Okay. Thank you, sir. These were all my questions. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Yes. Jambu ji, please give your question. Jambu Nalwaya ji. जी सर, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम जी सर। संदीप जी कहाँ गए? संदीप जी मैंने चैट पे पोस्ट किया है, आप कहें तो बोलते हुए भी करूं। संदीप जी ऑनलाइन नहीं है। बबीता जी आप आंसर करिए, आप बोल दीजिए सर। जी सर बोलिए, अपना डिटेल दीजिए और क्वेश्चन भी बताइए।
जी जी नमस्कार। नमस्कार। 4/11/2024। 2024 अभी बॉर्न है, 1 साल का नहीं भी नहीं नहीं हुआ। बॉन्ड नहीं, ये प्रश्न कुंडली है जी। तो 2024 क्यों बता रहे हैं आप? प्रश्न कुंडली तो अभी राइट नाउ। इवेंट नहीं चार्ट मेरे हो को गया ना, इवेंट चार्ट है ये मेरे को जिस इवेंट समय चार्ट पूछ रहे हैं। जिस समय क्लिक हुआ कि मुझे क्या करना है तो उस समय का प्रश्न है ओके। जी। शाम को 4:07 जी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 13/5 13, इट इज 13 और 30, 13/5 13th of May। हाँ अच्छा, हाँ 98 1980, 80 राइट, 80 नहीं 98 98, 98। अच्छा ओके ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ठीक है। समय बताइए। 11:58 11:58 AM मॉर्निंग, ठीक है। जन्म मॉर्निंग। समय तो हो गया। जन्म स्थान रानाघाट कहाँ पे? नया घाट, रानाघाट नदिया। राना घाट, नदिया डिस्ट्रिक्ट, ओके ओके नदिया डिस्ट्रिक्ट। यस यस। इस ग्रुप में वेस्ट बंगाल से काफी सारे लोग हैं। Yes, yes, many are there. Even from MP, there are people. No, most of them are very nearby from my place also. That's why. Just a minute. Rana, 1856, 23, 10. Fine. अच्छा, क्वेश्चन पूछूं? राहुल मजूम, जस्ट अ मिनट। आपका हॉरोस्कोप अभी शेयर होगा, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ मतलब जो डिटेल है, डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। डिटेल रहा ये 13th of May 1998, 11:58, रानाघाट, सही राइट? है सही है सही है सही है। फाइन। जन्म का वार बुधवार, सही है सही है। कृष्णा द्वितीया पक्ष। कुंडली यहाँ पे बना हुआ है सिंह लग्ना, चंद्रमा कुंडली में वृश्चिक में, और 17°22 मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र की फर्स्ट चरण का जो कुंडली है। बोलिए क्या प्रश्न है? मेरे को मतलब करियर से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन था, किस फील्ड में जाने से फायदा मिलेगा मेरे को। इस फील्ड में जाने से फायदा मिलेगा। हाँ एक्चुअली 16th of October। अभी तक मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लिया था, बट वो नहीं हुआ। तो अभी माइंड में चल रहा है कि आईटी में जाऊँ या फिर मार्केटिंग सेल्स में जाऊँ तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आपसे कॉन्फर्मेशन लेना था कि सही होगा कि नहीं। कोशिश करूंगा जितना हो सके। 10th हाउस सब लॉर्ड बीइंग सटन, शनि कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? शनि कुंडली में बैठा हुआ है नीच राशि में, 9th हाउस में। शनि का नक्षत्र स्वामी केतु कुंडली में 7th में बैठा हुआ है, 8 5th एंड 8 लॉर्ड गुरु के साथ। ठीक है, केतु गुरु का फल दे रहा है, और किसी घर का फल फलित है नहीं है। मंगल शनि का फल दे रहा है, तो शनि और केतु, तो बेसिकली 7 एंड 9th हाउस, 6 7 9th हाउस विल बी प्राइमरी। ओके, ठीक है, 6 7 9th हाउस शुड बी प्राइमरी। सटन इज बीइंग रेट्रोग्रेड। शनि के साथ 9th हाउस में 4 प्लैनेट, 9th हाउस में 4 प्लैनेट, शनि केतु। शनि अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र को अगर मार्क किया जाए, वो फिक्स साइन में बैठा हुआ है। भाई साहब, सबसे पहला चीज एक मार्क किया जाएगा, जिस प्रोफेशन को चूज करिएगा उसी प्रोफेशन के अंदर रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोई शफलिंग नहीं है, या इसको बदलने अभी ये कर रहा हूँ कल वो करूंगा, या 2 साल बाद वो करूंगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, पहला पहला चीज ये है। अभी जाते हैं कि कौन से फील्ड में बेहतर होगा। ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र का कंडीशन शनि केतु का, शनि केतु, ठीक है, शनि का और केतु का कॉम्बाइन अगर हो जाए, शनि की, शनि की, शनि के साथ बुध आया है, शनि बुध केतु 9th हाउस, बुध आया है, केतु आया है, शनि आया है, 9th हाउस अटैच्ड। 12th का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है।
केतु गुरु के साथ, गुरु अपने ही नक्षत्र में, तो 5 7 का कॉम्बिनेशन। आपके लिए मेरे तरफ से सलाह रहेगा 9th हाउस रिलेटेड, दैट इज शुड बी मार्केटिंग नॉट आईटी, और उसमें भी पर्टिकुलर फील्ड मेरे तरफ से आपको मेंशन रहेगा। वो कौन सा फील्ड रहेगा? यहाँ पे जो भी फील्ड या जो भी प्लैनेट्स अटैच्ड हैं, ठीक है, ये बेसिकली मैं कहूँगा कि कोई भी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट जो इंसान को हील करने की काम करता है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट। तो इस तरीके के कंडीशंस में मेडिकल फील्ड या जो फार्मास्यूटिकल फील्ड है, ये मेजरली बेहतर आपके लिए काम कर पाएगा, particularly for marketing. It is not, this horoscope is not working properly in terms of IT. और एक मतलब इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी वास्तु दिख रहा है क्या मेरे चार्ट में? एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु 9th हाउस, डेफिनेटली 9th हाउस जब कुंडली में अप्लाइड हो और वो कामकाज के घरों के साथ संपर्क में आए तो कंसल्टेंसी डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही चीज आपको कहा है कि मेन सोर्स पे एक ही चीज के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि का नक्षत्र स्वामी केतु प्लेस्ड एट ए फिक्स साइन, दैट इज स्थिर राशि। स्थिर राशि मीन्स फोकस ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। एस्ट्रोलॉजी कैन बी द एडिशनल अर्निंग, वो पैरेलल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अगर करना है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग में जाना पड़ेगा तो सिर्फ मार्केटिंग को ही प्राइमरी सोर्स बनाना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। यू हैव नॉट वेरियस चॉइसेस इन योर लाइफ। यहाँ पे मतलब बहुत सारा ऑप्शंस आपके हाथ में है, मुझे जो लगा मैं करा, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक चीज के ऊपर आपको रहना पड़ेगा। Okay, Rahul ji, thank you very much. थैंक यू Please give your question, Sangeeta ji. Sangeeta ji is not there. Deepti ji, please give your question. Hello. Yeah, Deepti ji, please give your question. This is regarding my daughter. उसका नाम यामोली है, यामोली व्यास। Just a minute. Sangeeta ji or Deepti ji? दीप्ति। Deepti, yes, Deepti, please continue. मेरी डॉटर का नाम यामोली है, यामोली व्यास। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2007। प्लेस है बांसवाड़ा, राजस्थान। Okay. And the time is 11:30 night PM. Okay, 2300 hours. Banswara. Yeah. It is also written Banaswara, right? BANSWARA. WARA. RA, yeah. Okay. Right. So, what is the question? सर क्वेश्चन ये है कि वो काफी ब्राइट स्टूडेंट है और थ्रू आउट अभी तक वो इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ी है और अच्छे स्कोर लिए हैं उसने, बट हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उसको बहुत ग्लोबली बहुत रेपुटेड उसमें मिली थी, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला था, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज हम इतना नहीं कर पा रहे थे पेरेंट्स एज पेरेंट्स। सो अभी भी वो अब्रॉड में ही है, बट उसकी चॉइस का नहीं मिला है उसको। तो सर अभी उसके ठीक से वो पढ़ पाएगी और आगे जॉब के कैसे हैं चांसेस उसके सर? और उसकी जॉब अब्रॉड में रहेगी या नहीं? एज क्या हो रही है 2007 के हिसाब से दीप्ति जी? 18। पढ़ाई की उसने? क्या सर? पढ़ाई क्या करी है? सर अभी वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस एआई कर रही है सर वो। ओके, आजकल सब एआई पे शिफ्ट हो गए। राइट सर, पहले वो फिजिक्स में जाना चाह रही थी सर, रिसर्च में, बट सबने बोला बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो उसने फिर अपना चेंज किया सर। ओके, 12th का एस्ट्रोफिजिक्स था उसका इंटरेस्ट। ओके, सो योर क्वेश्चन बेसिकली will her education will be good in the coming time, and when will she be doing a good job in her coming life? या और कहाँ होगी जॉब लाइक उसकी, अब्रॉड हो पाएगी क्या? Okay,
So in this horoscope tells CSL Jupiter in the star of Mercury, Jupiter ruling Sagittarius 4th and Pisces 7th, Mercury ruling Gemini 10th and Virgo 2, 4, 10. एजुकेशन तो ठीक रहेगी, एजुकेशन में तो खैर ऐसा कुछ सोचने वाला है नहीं, क्योंकि फोर्थ सीएसएल बहुत ही अच्छा बैठा है। जुपिटर द स्टार ऑफ मर्क्यूरी, बोथ आर वेरी गुड प्लैनेट्स एंड जुपिटर इज कंजॉइंड मून, सो देर इज नो पॉइंट एट ऑल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन कैसी रहेगी। नाउ कमिंग टू करियर, यस शी विल बी हैविंग अ वेरी ग्रेट करियर इन हर लाइफ। राइट नाउ शी इज गोइंग थ्रू द दशा ऑफ वी सी वीनस, वी सी केतु, केतु की दशा चल रही हुई, तो उसकी केतु की 2028 तक है। From 2088, Venus is going to start. Venus is ruling 2-9. Venus is placed in Moon star Venus sub. Venus is in the 5th house. Moon is in the 3rd house. Okay, Venus is ruling 2-9-5-11-3. ठीक है। तो इसका तो करियर को लेके आपको परेशान होना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, आपका जो मेन क्वेश्चन है कि विल शी बी कमिंग बैक, शी विल बी डूइंग टू एंड फ्रो। कुछ साल वो यहाँ जॉब करेगी, कुछ साल वहाँ करेगी, ना तो वो वहाँ स्टेबल रहेगी ना यहाँ स्टेबल रहेगी, बट शी विल बी ग्रोइंग अप इन हर करियर। ओके सर, अब्रॉड में सेटल हो पाएगी सर, वो वहीं चाह रही है तो? आई डोंट थिंक सो। सॉरी सर? आई डोंट थिंक सो। ओके, वो सेटल इंडिया में ही होगी? यस। ओके सर, एक और था कि सर वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, एंजाइटी होती है सर उसको, और उसके फ्रेंड्स बहुत कम हो पाते हैं सर। अच्छा है ना, जितना कम फ्रेंड रहेंगे उतना आदमी अपने करियर पे फोकस करेगा। वो थोड़ा लोनली फील करती है सर, तो ऐसा ही रहेगा या कोई चांसेस हैं कि उसको अच्छी कंपनी मिल पाए, लाइक फ्रेंड्स कम मिले बट अच्छे फ्रेंड्स मिल पाए सर? बिना से स्टार्ट होने दीजिए, सब सही हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा सर? सितंबर 2028। ओके, बाकी सब ठीक है सर, करियर वाइज एंड स्टडी वाइज? इज गुड, नो नीड टू वरी एट ऑल फॉर एनीथिंग। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच सर। 8:30 होने वाले हैं। संगीता जी, प्लेस बताइए सर। प्लेस है बरहमपुर, उड़ीसा। स्पेलिंग बोलेंगे सर? BERHAMPUR। डी है ना? डी फॉर डॉग। बी फॉर बम्बे। ओके, बरहमपुर। बेरहामपुर है बबीता जी, BERHAMPUR। बेरहम। हाँ अली। ओके। ए शाणे, दिवाळी बुवा कशाला लावला रे? हा, चुकून लावला काय? या चुकून लावला? मिल गया जी, 1 मिनट सर। सुरेंद्र जी ने चैट पे भेजा भी है, डाल के देख लीजिए। ओके सर। चार्ट पे है मेरा डिटेल्स। 1 मिनट, अभी होरा खोला हुआ है ना। जी आ गए। ओके, वृषभ लग्न है आपका, ठीक है? जी, वृषभ लग्न, कन्या राशि, शनि जी, में कन्या मंगल चल राशि। रहा है। शनि में ओके। मंगल चल रहा है अभी। हाँ, 2.5 साल से मतलब जॉबलेस हो, मतलब पूरा की पूरा जो फाइनेंस पीछे रखा था पूरा की पूरा खत्म हो गया। मतलब अब लाइवलीहुड के लिए परेशानी तो हो ही रहा है, तो बड़ी भी साथ नहीं दे रहा है। तो क्या जॉब का कब तक कुछ शुरू हो पाएगा ताकि फाइनेंशियल आगे चल पाएगा? अब पूरा टोटली ठप है। सब कुछ ठप हो चुका है इस समय। अब ठप हो जाए, जो तो पिछले था वो सब खत्म हो चुका है, लोन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब जैसे कि लग रहा है कि भाई लाइफ का आखिरी समय शुरू हो गया है, जबकि जी। बृहस्पति अष्टम में है। ऐसे तो नहीं लग रहा। ओके, शनि और मून के शनि स्टार में, जुपिटर के सब में। सैटर्न वर्गोत्तम है, सैटर्न का महादशा भी चल रहा है, बताइए। 9th हाउस का लॉर्ड है।
फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये शनि की दशा आपकी थोड़ी सी नेगेटिव कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि 8th हाउस सब सारे 8 5। जो उनका क्वेश्चन है आंसर दे दीजिए बबीता जी, वो नहीं तो जी जी दे अपना वो चालू रखेंगे। जी। शनि की दशा में अभी इनका प्रत्यंतर चल रहा है। मार्स मार्स राहु मरकरी, राहु इन 9th, मरकरी इन 12th। सर ये 2026 तक तो अभी ऐसे ही चलेगा, अक्टूबर तक। 12th हाउस पूरी तरह से एक्टिवेट है, हो जाएगा वो भी। तो वो भी खर्चे वगैरह इनसे कमी आने वाली है नहीं। नेक्स्ट दशा देखते हैं, शनि की दशा खत्म होने के बाद जो दूसरी आएगी इसके बाद बुध की दशा, उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। बुध में कुछ है नहीं है। बुध, मरकरी, मरकरी वीनस केतु, मरकरी इन 12th, वीनस इन 2nd एंड केतु इन 3rd, वीनस टॉरस एंड ये वीनस आपकी जब मरकरी की दशा शुरू होगी तब आपका थोड़ा अच्छा टाइम आएगा इसका फाइनेंसेस के हिसाब से। 2 and 6। जी क्या बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही सही। हेलो प्रदीप जी। आप अपना प्रेडिक्शन दे दीजिए। जी बताया मैंने, मरकरी की दशा में ठीक होगा थोड़ा, फाइनेंसेस बैंक बैलेंस और सब इनकम वगैरह सब चालू होगी दोबारा से। शनि की दशा पूरी ऐसी ही जाएगी। ठीक है, हेमांगी जी प्लीज आस्क क्वेश्चन। बबीता जी। सर मेरी नीस है, वो अभी अमेरिका में है, तो उसको जॉब नहीं है, मतलब मेल से जॉबलेस है वो, तो कभी जॉब मिल सकती है या फिर मतलब वो सेटल हो जाएगी क्या उधर? हाँ बबीता जी लीजिए क्वेश्चन। उसका हेलो जी डिटेल दीजिए हेलो मैम। हाँ 10 फेब 2000 2000 450 PM 2000 हाँ 2000 450 ओके PM कल्याण ओके। कल्याण कल्याण बॉम्बे। या ठीक, हाँ महाराष्ट्र। मुंबई ठाणे हाँ महाराष्ट्र। ओके। दोस्तों जिस मैम क्वेश्चन बताइए, आप दोबारा बोलिए मेरे को उससे। जॉब कब मिलेगा मैम? वो अभी जॉब यूएस कब में है मिलेगा? मैम। हाँ यूएस में ओके। है। मेल से उसका जॉब गया है, तो अभी जॉब कब अच्छा तक मिलेगा उसको? और वहां पे अभी उसका प्रोसेस भी H1B का प्रोसेस भी उसको करने है, तो वो कब तक हो ओके जाएगा? ठीक है। अभी इनकी वीनस की दशा चल रही है, या यस तो वीनस की दशा में इनका अंतर चल रहा है सैटर्न शनि का अंतर चल रहा कर्क है। लग्न और मीन राशि है ना उनका सर मैम? जी कर्क लगन, हाँ जी कर्क लगन है, मीन राशि है। ओके मीन राशि या करेक्ट जी या जी जी। तो अभी इनकी वीनस की दशा में शनि का अंतर चल रहा है, इनकी जॉब हम्म चली गई है, ये आप या बता रहे हैं ना, ठीक है। हाँ हाँ शनि वीनस सन, शनि वीनस मून, वीनस इज इन 5th हाउस होगा तभी जॉब गई होगी 6th।
जॉब तो लग जाएगी इनकी, जल्दी लग कब जाएगी। तक लगे? अब तक हाँ मैं अब बता, दिसंबर तक लग जाएगी मैम? एक सेकेंड। या सेटल is 10th, Venus 5th is 9th is उसके इंटरव्यूज हो रहे हैं मैडम, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है उसमें इंटरव्यूज नहीं, में। लग जाएगी मैम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीनस इनके हाँ लिए हाँ अच्छा है, अच्छा तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत डिले, हाँ थोड़ा बहुत बीच में हाँ, हल्का फुल्का है, लेकिन डिलेज ज्यादा लगे। ज्यादा दिक्कत ओके नहीं है। ओके ओके। हिमांगी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके मैम, वेलकम मैम। चलिए। या आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड नाउ वी आर क्लोजिंग। पद्मनाभा जी, योर क्वेश्चन वाज आंसर्ड, राइट? He's in mute. सर फर्स्ट क्वेश्चन था इनका, पहला क्वेश्चन इन्हीं का लिया गया। He's in mute. ओके। तो यस, सावित्री जी, नाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कोशिश करते हैं। थैंक यू सर कोशिश फॉर कर रहा कमिंग। सर। सब शुभेंदु जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे तरफ से जितना हो सका मैडम, मेरे तरफ से मैंने किया। नहीं सर, मैं कोशिश लर्नर करता हूँ, हूँ। मैं आपको मतलब बहुत ना ऐसा एडमायर नहीं है करती हूँ। मैडम, हर कोई नहीं हर मैम, कोई आई करते मीन करते ही सीखते हैं, हर कोई रमन करते सर तो करते ही है ही सीखते साथ हैं। में, लेकिन आपकी जो होती है ना, मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ उन चीजों को। करते करते ही सीखते हैं, सीखता है ना आदमी, जी बिना जी नहीं सीखता है। जी। करते करते ही सीखते हैं इंसान, करते करते ही सीखते हैं। हमने भी ऐसे ही गलती करते करते ही सीखा है। रमन जी भी, अब रमन जी अगर कहा जाए तो लगभग मेरे पिताजी की उम्र की ही है, ठीक है। तो जी उनके जी सामने मैं ऐसे तो छोटा ही हूँ काम में और एक्सपीरियंस में, तो जैसे वो आपको गाइड करते हैं आगे बढ़िए। जी। You did very well. I mean, I was really happy to see. I mean, at such age, you have mastered KP like a expert pro. कोशिश करता हूँ सर, वही सासने जी के ही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। Right, sir. Right, sir. मेरा जो गुरु जी है वो कृष्ण कुमार बागरी जी हैं, जो सासने जी के ही स्टूडेंट हैं, मतलब रहे हैं। Okay, okay. मैं बागरी सर का स्टूडेंट हूँ। Okay. So we are actually carrying Sasne ji's legacy forward. You and me both. ट्रू, बिकॉज मैं सिर्फ सासने जी के तरफ से, मतलब बागरी सर से नहीं, मैंने करीब 4 महीना गोंदेलकर जी से भी सीखने का मौका मिला। Okay. तो लेकिन उनके देहांत के बाद और पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन वो भी मतलब वही सासने जी के ही लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बुंदेलकर जी भी ही सासने जी की ही स्टूडेंट है, रहे हैं। Yes. I mean, Sasne ji has given us so much to KP, no? Because so much sir, so much nobody can give. नो, इतना सिंपल तरीके से इतना अच्छा समझ को किसी ने दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं है. Impossible. किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। That is what I teach to everyone. No, to all my students, I teach Sasne only. हाँ, सिंपल तो तरीके सर ये से सर। सासने जी की जो अभी आपने बुक की रिकमेंडेशन कर रहे थे, अभी आप जैसे ऐड भी डाला हुआ है इस पे फेसबुक पे, तो हिंदी में भी बता रहे थे ना? ये हिंदी में ही उपलब्ध है। सासने जी के संदीप जी से बात कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। तो मुझे पढ़नी चाहिए ना, मुझे, क्योंकि मुझे आप जैसी नॉलेज लेनी है। ओ बाबा, पढ़नी चाहिए, मतलब ये किताब पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर कोई संदेह रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जी। संदेह रखना ही नहीं चाहिए। पहला 2 खंड अगर पढ़ लेंगे तो ज्योतिष का एक बेसिक फंडामेंटल और अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। ओके सर। रीडर क्या है, रीडर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लर्नर के लिए, या जो शुरुआती दौर पे। तो जी, ये किताब पढ़ने के बाद रीडर में जाएंगे तो ज्यादा आसान फिर होता वो है। समझ में आने लग जाएगा। एग्जैक्टली कृष्णमूर्ति जी बोलना क्या चाह रहे हैं, एकदम शुरू में कोई रीडर उठा के पढ़ दैट इज पॉइंट